हाय एवरीवन। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दो इम्पॉर्टेंट थीम जो है न्यूज़ में काफ़ी चल रही है। आप दोनों थीम के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे ही हमें कोई पैसेज मिलता है, एज सुन एज वी गेट अ पैसेज, राइट, वी शुड रीड इट फास्ट, रीड इट वेरी फास्ट, and this you have to do it for first two paragraphs. ठीक है, रीड इट वेरी फास्ट बिकॉज फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में आपको एक आइडिया लगेगा, यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। बेस्ड ऑन दिस आइडिया यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इसके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस जो हैं, राइट, वो हमारे को समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। फिर जो लास्ट पैराग्राफ होता है, लास्ट पैरा होता है, राइट, या उस फर्स्ट टू पैरास के बाद जो भी पैरा होते हैं, यू कैन गो स्लो हियर। So technically, the simple logic is that fast reading might not help. Fast reading might not help. But why do we read fast? We read fast to understand, to get an idea about the theme that is being discussed in the passage. So let us try to put this to practice. Now we have an article with us, and this particular article is based on recent speech given by Prime Minister. So let us try to read the first two paragraphs very fast. And notice the speed at which I am reading because you need to practice at that scale only. Prime Minister Narendra Modi's recent excoriation of the so-called Macaulay mindset has rekindled a long-simmering discourse on the linguistic and epistemological inheritance of colonial rule. As India ascends towards geopolitical prominence and civilizational self-assertion, it must confront a paradox bequeathed by empire, a language imposed as an instrument of domination that has since been repurposed as a vehicle of dissent, emancipation, and global engagement. The question, therefore, is not whether English belongs in India, but whether Indians have allowed it to eclipse their own intellectual inheritance. The historical irony is unmistakable. Thomas Babington Macaulay's notorious Minute on Indian Education, 1835, emphasizes the manufacture of an intermediary class, Indian in physiognomy, yet English in sensibility, cognition, and moral orientation, designed to lubricate the administrative machinery of the empire. His contemptuous dismissal of indigenous knowledge systems, epitomized by his assertion that European literature outweighed the outweighed the entirety of Indian and Arab scholarship, was not merely arrogant but civilizationally myopic. The objective was not enlightenment but efficiency, not education but subordination. Now, what did you get from this? I'll tell you what did we get from this. So, this is first the debate around, there is a debate around English language. Now, whenever there is the debate on language in India, this is a very common political issue. A very common political issue. Now, what is common in this particular political issue? First topic is common that there is this National Education Policy 2020, which is trying to impose a three language formula. Now, the three language formula might be working for those states जहाँ पे थ्री लैंग्वेज है ही नहीं। जैसे बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, राइट, इंग्लिश बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। बट कुछ स्टेट्स हो सकते हैं जहाँ पे मदर टंग कन्नड़ है, मराठी है, उड़िया है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, तमिल है, तेलुगु है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ ये वाली लैंग्वेजेस भी ऐड होती हैं। तो पहली बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है वो साउथ के बहुत सारे स्टेट्स रिजेक्ट करते हैं। ये एक कॉमन थीम चलती है। दूसरा जो डिबेट चलता है वो चलता है इंग्लिश लैंग्वेज की यूटिलिटी पे।
अब इंग्लिश एजुकेशन मैकॉले लेके आए थे इंडिया में। मैकॉले ने इंग्लिश लैंग्वेज का पर्पस क्या था इंट्रोड्यूस करने का? क्या लोगों को एजुकेट करना था? नहीं। ब्रिटिश माइंडसेट के जो इंडियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर सकते थे, किसको? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश माइंडसेट के हैं, तो ब्रिटिश के जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसलेट करके कॉमन पब्लिक को सुना सकते थे। दूसरा दूसरा पर्पस था सब्जुगेशन का, यानी आपके ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को डिसरिकग्नाइज करना और इंग्लिश सुप्रीमेसी को बढ़ाना। प्राइमरीली सब्जुगेशन वाला जो लॉजिक है, ये हमारे हिस्टोरियंस ने एट्रीब्यूट किया है कि ब्रिटिशर्स ये सोच के सब्जुगेट करने के लिए, अपने को दबाने के लिए अपने कल्चर को उन्होंने किया होगा। लेकिन 99.9% टाइम्स इस चीज़ पे पूरी सहमति है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए तो लैंग्वेज इंग्लिश सिखाई जा रही थी। ठीक है, तो इंग्लिश एक मॉडर्न कल्चर का सिंबल बन गया। अब आज भी, इवन टुडे, व्हाट इज द ट्रेंड? एंड दिस इज वेयर द ऑथर विल हाईलाइट योर अटेंशन। इवन टुडे, राइट, इंग्लिश कल्चर, अंग्रेजी बाबू, इंग्लिश बाबू, ऐसा बोला जाता है। अभी जो कॉमन सेंस में जो चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं ना, आसपास देखते हैं, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, एक पैसेज के रूप में आपके सामने रखा है। अब आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ के अब हम वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि चैलेंजेस हमें क्या क्या इनकाउंटर करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है एक्सकोरिएशन का मतलब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म किया है ऑफ द सो कॉल्ड मैकॉले माइंडसेट। इससे रीकिंडल हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीकिंडल? रीकिंडल का मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, रीइग्नाइट करना। एक लॉन्ग सिमरिंग डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशन, डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशन, अ लॉन्ग सिमरिंग डिस्कशन on the linguistic and epistemological inheritance of colonial rule. Linguistic समझ में आ रहा है? What is the meaning of this word? Epistemological. बट सेंस समझ में आया कि अंग्रेजों के शासन से भारत को क्या मिला विरासत के रूप में, उसका ऊपर जो काफ़ी लंबे समय से जो चर्चा चल रही है, वो वापस से निकल के उभर के सामने आ जाती है। एज इंडिया असेंड्स टूवर्ड्स जियोपॉलिटिकल प्रोमिनेंस, जैसे जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, प्रोमिनेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंडिया इंटरनेशनल स्केल पे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एंड सिविलाइजेशनल सेल्फ असर्शन, और इंडिया अपने सिविलाइजेशन पे, अपनी सभ्यता पे गर्व भी करता है, गौरव भी करता है, तो सेल्फ एजर्ट कर रहा है, मतलब बता रहा है कि हम भी हैं, राइट। इट मस्ट कॉन्फ्रंट अ पैराडॉक्स। उसको एक पैराडॉक्स, यानी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कॉन्फ्रंट मतलब फेस करना पड़ेगा। बिक्विथ्ड बाय एम्पायर। अब ये बिक्विथ्ड बाय एम्पायर मतलब हमारी जो कॉलोनियल लेगेसी है, बिक्विथ्ड बाय एम्पायर। अ लैंग्वेज imposed as an instrument of domination that has since been repurposed as a vehicle of dissent, emancipation and global engagement. Now, second challenge is, what is the meaning of the word emancipation? ठीक है, emancipation, bequeathed, paradox, prominence, epistemological, all of these words will create a challenge for you. तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे इंडिया इंटरनेशनल स्केल पे इम्पोर्टेंस पे आ रहा है, सिविलाइजेशन को सेल्फ एजर्ट कर रहा है, उसको ये कॉलोनियल लेगेसी के ऊपर से जो हमें एक लैंग्वेज मिली, एक लैंग्वेज जिसको हमें डोमिनेट करने के लिए यूज़ किया गया, और बाद में उसका पर्पस, इंग्लिश लैंग्वेज का पर्पस जो है वो चेंज किया गया, व्हीकल ऑफ डिसेंट, इमांसिपेशन एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। अब क्या है, द क्वेश्चन देयरफॉर इज नॉट वेदर इंग्लिश बिलोंग्स इन इंडिया, बट वेदर इंडियंस हैव अलाउड इट टू एक्लिप्स, यानी छुपाना, देयर ओन इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेंस।
सो ऑथर के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज ने एज सच कुछ नहीं किया है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो परसेप्शन है इंडिया में, उस परसेप्शन के ऊपर, उस परसेप्शन के अराउंड, उस ओपिनियन के अराउंड कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, ऑथर कह रहा है कि क्या इंडियंस ने खुद अलाउ कर दिया है कि इंग्लिश का नॉलेज होगा तो ही आप इंटेलेक्चुअल माने जाओगे, अदरवाइज आप नहीं माने जाओगे। सो इसमें द ब्लेम as per the author is not on Macaulay, is not on colonial India, and but the author is on the perception of this English language within Indians. Now the author of this particular article is none other than Shashi Tharoor. Shashi Tharoor is the author of this particular article. सेकेंड पैराग्राफ में हम बात करेंगे द हिस्टोरिकल आयरनी इज अनमिस्टेकेबल। व्हाट इज द हिस्टोरिकल आयरनी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑथर इज टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल आयरनी। आयरनी का मतलब उल्ट, अपन ने जैसा सोचा हो वैसा ना हो, आयरनिकल, उल्टा, क्वाइट ऑपोजिट। हिस्टोरिकल आयरनी इज अनमिस्टेकेबल। थॉमस बैबिंगटन मैकॉलेज नोटोरियस, नोटिस द वर्ड, एक किताब है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ऑथर ने कैसा बोला है? नोटोरियस बोला है, राइट। एनविसेज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ एन इंटरमीडियरी क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरमीडियरी क्लास? इंटरमीडियरी क्लास मतलब एक तरफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, दूसरी तरफ इंडियंस हैं, इनके बीच में एक क्लास ऑफ पीपल है जिसको इंटरमीडियरी क्लास बोला जा रहा है। तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने अपनी इस रिपोर्ट में, दैट इज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जो उसने 1835 में रिपोर्ट लिखी थी, उसमें उसने बोला कि हमें एक इंटरमीडियरी क्लास बनाने की ज़रूरत है। एक इंटरमीडियरी क्लास इंडियन जो कि दिखने में, फिजिकल फीचर्स में, फिजियोग्नॉमी में इंडियंस हों, लेकिन उनकी सेंसिबिलिटी, उनकी समझ अंग्रेजी हो, इंग्लिश हो, यानी ब्रिटिश से इंस्पायर्ड हो, उनका कॉग्निशन, उनका मॉरल ओरिएंटेशन ब्रिटिश से ओरिएंटेड हो। अब उस क्लास को क्यों डिज़ाइन किया जाएगा? मैकॉले के हिसाब से उस क्लास को डिज़ाइन किया जाएगा डिज़ाइन टू लुब्रिकेट, लुब्रिकेट का मतलब स्मूथ करना, द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ एम्पायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश एजुकेशन को रीब्रांड किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट ज़रूरी था। हिज कॉन्टेम्पटुअस डिसमिसल। नाउ कॉन्टेम्पटुअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पटुअस इज अ निगेटिव वर्ड, डिसमिसल मतलब डिसअप्रूवल। हिज कंटेम्पटुअस यानी विद्रोह योग्य, क्रिटिसाइज करने योग्य। तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने क्या किया? डिसमिस किया। ऑथर इसको कंटेम्पटुअस मान रहा है कि गलत था, ये ऐसा नहीं करना था बैबिंगटन मैकॉले को, पर क्योंकि उसने ऐसा किया, एपिटोमाइज्ड यानी एग्जाम्पल के रूप में, एपिटोमाइज करना मतलब किसी को एग्जाम्पल के रूप में बताना, एपिटोमाइज्ड बाय हिज एजर्शन that European literature outweighed the entirety of Indian and Arab scholarship. बैबिंगटन मैकॉले ये मानता था कि यूरोप का जो लिटरेचर है, यूरोप की जो लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है, वो पूरे इंडियन और अरब स्कॉलरशिप को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी पुरानी है, इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैबिंगटन मैकॉले ऐसा मानता था, इसीलिए इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स थे उनको वो डिसमिस करता था। वॉज, ऑथर कहता है ये जो बैबिंगटन मैकॉले कर रहा था, इट वॉज नॉट मियरली एरोगेंट बट सिविलाइजेशनली मायोपिक, छोटी सोच, एक इतनी बड़ी सभ्यता के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करना। पहली बात तो आप, ऑथर उसको एरोगेंट मैकॉले को क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम बाकी सारे सिविलाइजेशन सिस्टम्स को, उनके नॉलेज को छोटा बोल रहे हो। दूसरा, तुम सिविलाइजेशनली मायोपिक मतलब, as per the author, Babington Macaulay does not understand the importance of civilization. Civilization के point of view से it is very very important to understand the contributions of every civilization. The objective, and that is why the author says, the objective was not enlightenment but efficiency, not education but subordination. The objective was not enlightenment but efficiency, not education but subordination. Yet, language like history itself resists determinism. अब कहता है ऑथर ने, लैंग्वेज को कंपेयर किससे किया? हिस्ट्री सब्जेक्ट से। रेजिस्ट डिटर्मिनिज्म,
मतलब जैसे देखो, हिस्ट्री का जो परसेप्शन है कि हिस्ट्री किसको फेवर करती है, हिस्ट्री ऑलवेज फेवर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट, हिस्ट्री नेवर फेवर्स द ट्रूथ, हिस्ट्री फेवर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री हैड द पावर टू ऑल्टर द ट्रूथ। ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री डिटरमाइन नहीं कर सकते आप कि बाबर बेवकूफ़ था और राणा सांगा इंटेलेक्चुअल था, कि राणा सांगा ही सब कुछ थे और बाबर कुछ नहीं थे। एक डिटर्मिनिज्म नहीं दे सकते, इसीलिए लैंग्वेज और हिस्ट्री बोथ आर कंटिन्यूअस। ओके, इंग्लिश डिड नॉट रिमेन द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ द कॉलोनाइजर, विच मीन्स कॉलोनाइजर कौन था, ब्रिटिश। तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ही बोलते थे, इट वॉज एप्रोप्रिएटेड भारत की समझदारी के हिसाब से, एक्सेंट के हिसाब से एप्रोप्रिएट किया गया, उसको चेंज किया गया, इंडिजनाइज, इंडियन सिस्टम्स, इंडियन वर्ड्स डाले गए या इंडियन एक्सेंट जुड़ा उसमें, एंड वेपनाइज्ड, उसको वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया, बाय दोज इट वाज मेंट टू सबड्यू। यानी इंग्लिश इंडियंस बोल रहे थे अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों के हिसाब से, और जब जब ज़रूरत पड़ रही थी तो उसको वेपन की तरह भी यूज़ कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को समझा रहे थे, अंग्रेजी भाषा में समझा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्लोगन अंग्रेजी भाषा में दे रहे थे, साइमन गो बैक। तो इंडियंस वर ऑल्सो वेपनाइजिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। The very cohort Macaulay hoped would perpetuate colonial hegemony became the intellectual vanguard of Indian nationalism. Now, look how Shashi Tharoor is trying to tell you the role English played and how Indians used English language. He says, the very cohort Macaulay hoped would perpetuate colonial hegemony. मैकॉले ने अंग्रेजी क्यों प्रमोट करी थी, उसको लगा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चला पाएंगे। तो जिस कॉन्सेप्ट से मैकॉले ने अपनी कॉलोनियल सुप्रीमेसी को परपेचुएट यानी फैलाने की कोशिश करी थी, जो उसका उद्देश्य था कि कॉलोनियल हेजेमोनी प्रमोट करना है, वो इंटेलेक्चुअल वैनगार्ड में बदल गया इंडियन नेशनलिज्म। वैनगार्ड का मतलब क्या होता है, वैनगार्ड का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंडियन नेशनलिज्म में जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी और अपनी सारी प्रोटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में करने लग गए, सो दैट इट डायरेक्टली रीचेस द ब्रिटिशर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जर्नलिज्म हुआ, जैसे इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका ने स्टार्ट करा, इवॉल्व इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलेंटलेस स्क्रूटिनी, challenging the British Raj and later the authoritarian excess of emergency. Now, this is where you need to focus that English language was used to protest against the British Raj, but after independence 1975, इमरजेंसी मतलब 1975 यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो सरकार ऑथोरिटेरियन एक्सेसेस कर रही थी, यानी अपनी लिमिट्स ब्रीच कर रही थी, सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में लोग परेशान थे, इंडियन सिटीजन्स परेशान थे सरकार से, तो इंग्लिश लैंग्वेज का आज भी उतना ही महत्व है। दस द लैंग्वेज ऑफ कमांड वॉज ट्रांसम्यूटेड यानी चेंज हुआ इनटू द लैंग्वेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑथर का जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब क्लैड कंसोर्शियम आपको ये 3 पैराग्राफ दे के इस टॉपिक को ख़त्म कर सकता है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इतना ही बड़ा होता है एक स्टैंडर्ड पैसेज क्लैट में। थोड़ा सा और लेंदी होगा तो एक पैराग्राफ और जोड़ देंगे, इससे ज़्यादा लेंदी क्लैट के पैसेजेस नहीं होंगे, मॉक के पैसेजेस हो सकते हैं। तो टेक्निकली जो ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है एक पेज पे, ये जो पैराग्राफ है इसको हमें 3 मिनट से भी कम में पढ़ के, प्रोसेस करके, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करके आंसर फाइंड करने की एबिलिटी डेवलप करनी। इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, so that whenever you feel like that I have nothing to study and I am not able to read, I don't have the patience to read and understand, these sessions, these recorded lectures will help you to sail through that time। कि आप ईयरफोन लगाइए, पर्टिकुलर लेक्चर को प्रॉपरली देखिए और बहुत ईजिली आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये पैसेज कंटिन्यू होगा एंड देर आर 3 more paragraphs, so we'll try to now take it a little bit fast।
However, Macaulay's most enduring legacy was not linguistic but epistemic. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंस था, लेगेसी था किसका, मैकॉले का, वॉज नॉट लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से नहीं बट एपिस्टेमिक. एजुकेशन सिस्टम ही इनॉग्रेटेड प्रिविलेज्ड वेस्टर्न कैनन्स. तो एजुकेशन सिस्टम जो उसने शुरू किए थे, प्रिविलेज्ड वेस्टर्न कैनन्स, यानी वेस्टर्न कैनन्स मतलब बारूद, तो वेस्टर्न कैनन्स मतलब वेस्टर्न माइंडसेट, वाइल सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइजिंग इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस. जाहिर सी बात है, आज जो इंग्लिश बोलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो हिंदी बोलता है शुद्ध कितनी भी हिंदी बोल दे, वो कभी भी इंग्लिश बोलने वाले सो समाज में इज्जत दर्जा तो उसको ज़्यादा दिया जाता है. तो ये देखो ऑथर कह रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम मैकॉले ने स्टार्ट किया, आज उसकी वजह से हमारा जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन सिस्टम है वो मार्जिनलाइज हो गया, यानी कॉर्नर हो गया, दरकिनार हो गया. फॉर डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड शेक्सपियर बट नॉट कालिदास, प्लेटो बट नॉट उपनिषद्स, Homer and Virgil but not Mahabharata. The colonial curriculum cultivated familiarity with Greece and Rome while fostering, yani strong, making it strong, while making it strong ignorance of India's own civilizational texts. हमने वेस्टर्न ऑथर्स पढ़े, प्लेटो को पढ़ा, हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने होमर को पढ़ा, लेकिन हमने अपने ट्रेडिशनल टेक्स्ट को नहीं इंपॉर्टेंस दी. तो ये सब हुआ कॉलोनियल करिकुलम, यानी ब्रिटिश ने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, राइट. द एसिमेट्री वाज नॉट एन इनएविटेबिलिटी ऑफ इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन. ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा था इसलिए ये सब हो रहा था. मोस्ट क्लासिकल इंडियन वर्क्स एग्जिस्ट इन रॉबस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशंस, बट a manifestation of deeper cognitive colonization that equated Western knowledge with universality and Indian thought with parochialism. Now parochialism का मतलब backwardness. तो यहाँ पे ये कह रहा है, एट लास्ट आपसे ये कह रहा है कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं, है ना. ऐसा क्यों नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न टेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज में हो, क्यों नहीं शेक्सपियर की जो नॉवेल्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया. तो ये बता रहा है कि जो लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी या इंडिजिनस टेक्स्ट को, लोकल लैंग्वेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, उतना ज़्यादा इंडिजिनस नॉलेज, इंडिजिनस सिस्टम्स दबेंगे. जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है, अगर वो रूलर की है, अगर वो ताकतवर आदमी की है, वो ताकतवर सभ्यता की है, तो वो आपके इंडिजिनस सिस्टम को ख़त्म करेगी ही करेगी. तो कहता है इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन ऑफ डीपर कॉग्निटिव कॉलोनाइजेशन हुआ. ठीक है, इट वॉज द रिजल्ट, मैनिफेस्टेशन मतलब रिजल्ट ऑफ अ डीपर कॉग्निटिव कॉलोनाइजेशन. आपके चाल ढाल बोल चाल को कॉलोनाइज किया गया. क्यों किया गया, क्यों कर पाए? क्योंकि वेस्टर्न नॉलेज को, वेस्टर्न एजुकेशन को दुनिया के ज्ञान से जोड़ा गया, यूनिवर्सलिज्म से जोड़ा गया, और आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स को पिछड़ा हुआ बोला गया. इट इज इन दिस इंग्रेन्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं तो हम बैकवर्ड हैं और सूट बूट पहनते हैं तो बड़े मॉडर्न हैं. इन दिस इंग्रेन्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स rather than English language itself that warrants repudiation. तो कहता है हमें हमारा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, लैंग्वेज को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है. English has functioned as a formidable enabler of Indian modernity. Author is not denying this fact कि yes, modernity का एक साइन सिंबल है इंग्लिश लैंग्वेज. इट हैज़ फैसिलिटेटेड, आज इंग्लिश भाषा की वजह से हम ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क्स का पार्ट बन पाए हैं, राइट. इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज के बलबूते पे हुआ. इंडिया की डिप्लोमेटिक वॉइस दुनिया में थी पर और मजबूत बनी, एम्पलीफाई हुई इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से. और हमारा जो लिटरेरी कॉर्पस है, यानी जो हमारे पास किताबों का जो संग्रहालय है, वो भी एनरिच हुआ. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन, साइंटिफिक डिस्कोर्स एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशन. नाउ लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. Constitutional adjudication means in the High Court and the Supreme Court on constitutional matters, you can only argue in English. Scientific discourse, all important science, physics, chemistry, bio, medical science, everything is available. The global information and knowledge is available in English language itself.
and international negotiation. So you are able to transact with multiple countries, sit with multiple countries, seek their opinions, communicate your own opinions because of English language and that you are using. Increasingly, it is also the medium through which Indians can converse with one another and across linguistic frontiers. So English is also a cementing language where you don't know the local language. So if you, let's say, southern state people do not want to speak Hindi and you don't know their mother tongue or their local language, so English becomes the common meeting ground where you can discourse and discuss. Yet the paradox persists. ऑथर कहता है फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है. पैराडॉक्स क्या है? इंग्लिश इज कैस्टिगेटेड इन पॉलिटिकल रेटोरिक. कैस्टिगेटेड मतलब चीर हरण किया जाता है. ठीक है, इंग्लिश की बहुत बुराई की जाती है पॉलिटिकल रेटोरिक्स में, यानी पॉलिटिशियंस अंग्रेजी को खराब बोलते हैं. इवन एज इट इज फर्वेंटली सॉट बाय एस्पिरेशनल पुअर. ऑथर कह रहा है गांव के गरीब से पूछे जाके उसके उसका ख्वाब नहीं है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है. उसका ख्वाब ये है कि मुझे अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है. तो कह रहा है ये पैराडॉक्स कैसा है कि देश के पॉलिटिशियंस जो हैं वो इंग्लिश को गाली बकते हैं, लेकिन भारत देश का जो गरीब है, एस्पिरेशनल पुअर है, वो इसको ब्रिटिश की देन नहीं देखता है. वो इसको कॉन्डुइट, डज नॉट परसीव इट एज अ कॉलोनियल रेसिड्यू बट एज अ कॉन्डुइट मतलब ब्रिज टू सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी. गांव का गरीब जानता है कि आज हमारे बच्चे को आगे बढ़ना है, अगर हमको समाज में इकोनॉमिकली सोशली आगे बढ़ना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में ज्ञान होना ज़रूरी है. फॉर द रिक्शा पुलर who sacrifices to send his child to an English medium school, the language signifies not cultural betrayal but emancipatory. emancipatory मतलब किसी चीज़ से निकालने वाला. तो ऑथर कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके कल्चरल बिट, आप इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोलचाल करते हैं, तो आप आपके कल्चर को धोखा दे रहे हैं. ये परसेप्शन गलत है ऑथर के हिसाब से. लेकिन इंग्लिश का रोल वो इमेंसिपेटरी कह रहा है, यानी हेल्प किया है, इमेंसिपेटरी पोटेंशियल लोगों को गरीबी सीमा से बाहर निकालने में, मॉडर्न एजुकेशन लेने में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस में, इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस में. हमारे बच्चे अगर इंग्लिश बोलते हैं तो यूएस और यूरोप में पढ़ पाते हैं. तो इसको इमेंसिपेटरी पोटेंशियल बोल रहा है. अब देखिए ये वोकेबलरी है, दिस इज शियर प्लेन वोकेबलरी. अब पोटेंशियल का मतलब आपको पता है पर इमेंसिपेटरी का मतलब नहीं पता है या उसका सेंस नहीं पता है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अटकता है, आपकी स्पीड स्लो होती है. राइट. टू मॉरलाइज अगेंस्ट सच एस्पिरेशंस इज टू मिसअंडरस्टैंड द लिव्ड रियलिटीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया. ऑथर सारे पॉलिटिशियंस के इस मूव को कि आप ऐसी इंडिया में, आप अगर गरीब देश की एस्पिरेशन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, मॉरलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट सच एस्पिरेशन, तो हमारे जो कॉलोनियल आज़ादी के बाद का जो भारत है उसकी जो रियलिटीज़ हैं आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं अगर आप अपने पॉलिटिकल स्पीचेस में इंग्लिश लैंग्वेज को की इंपॉर्टेंस को ख़त्म करते हैं. द करेक्टिव देयरफॉर, अब ऑथर यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा है कि करेक्टिव देयरफॉर लाइज नॉट इन लिंग्विस्टिक प्योरिज्म, कि हमें हमारी कल्चर में जो भाषा का महत्व है उसको प्योर करने की ज़रूरत है, बट इन इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म. बहुत ही डीप लाइन है ये, एंड फॉर श्योर अगर आप खुद से पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फ्रेम फिगर आउट आंसर्स फ्रॉम दिस. सो द करेक्टिव देयरफॉर लाइज नॉट इन लिंग्विस्टिक प्योरिज्म बट इन इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म. ऑथर कह रहा है कि अपनी सोच को बदलो. भाषा शुद्धिकरण करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ प्योर हिंदी में होगा. आपको इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म का मतलब यह है कि आप भी रह सकते हो, आपके साथ और भी लोग रह सकते हैं. तो लैंग्वेज इज अबाउट शेयरिंग आइडियाज, कम्युनिकेटिंग, राइट. सो यू हैव अ लैंग्वेज, दे हैव अ लैंग्वेज, तो आप ओपन और रिसेप्टिव रहिए बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी, राइट. National education policy's emphasis on mother tongue represents a belated but necessary recalibration. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बीजेपी ने इंट्रोड्यूस करी और ये ऑथर शशि थरूर कांग्रेस के हैं. तो इन्होंने देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सराहा, अप्रिशिएट करा. कैसे? बोलता है ये
रिप्रेजेंट्स अ बिलेटेड, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नेसेसरी रिकैलिब्रेट करना, किसी चीज को कैलकुलेट करके दोबारा से करना, राइट, रीवायर करना, रीप्रोग्राम करना। तो कह रहा है कि आपने जो लोकल लैंग्वेज प्रमोट करी ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये जरूरी था। मॉडर्निटी नीड नॉट एंटेल कल्चरल एमनीजिया। मॉडर्न होने के नाम पे हम हमारी जड़ें ना भूलें। एमनीजिया मतलब भूलने की बीमारी। मॉडर्निटी नीड नॉट एंटेल कल्चरल एमनीजिया। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ये भी मॉडर्न हुए, लेकिन इन्होंने अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को रेलिंक्विश नहीं किया, यानी ख़त्म नहीं किया। अपनी भाषा से ही आज इनकी आइडेंटिटी है। इंडिया मस्ट, इसीलिए इंडिया को भी सिमिलरली डी थ्रोन इंग्लिश, तख्त से उतारो इंग्लिश को, जो अपने दिमाग में बढ़ा चढ़ा के इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंट बनाया, उसको डी थ्रोन करो। डी थ्रोन इंग्लिश फ्रॉम इट्स मोनोपोलिस्टिक पेडेस्टल विदाउट डिस्कार्डिंग इट ऑल टुगेदर। तो इतना बड़ा अपने दिमाग में आपने इंग्लिश एजुकेशन को बना रखा है, आती है तो मतलब सीखना चाहते हैं तो बहुत बड़ा बना रखा है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो लोग करना चाह रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि इंग्लिश करके क्या करोगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इंग्लिश को इसके मोनोपोलिस्टिक पेडेस्टल से उतार के आपको देखना पड़ेगा इंडिया के लिए क्या सही है, और ऐसा भी मत करिए कि इंग्लिश को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, टू शेड द मकॉले माइंडसेट इज टू रीसेंटर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विद इन एजुकेशनल कैनन। ऑथर के हिसाब से हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनको उनको अपने एजुकेशन सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करिए। कालिदास शेक्सपियर के साथ पढ़ाइए, रामायण बाइबल के साथ पढ़ाइए, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को वेस्टर्न फिलोसफी के साथ पढ़ाइए। इट इज़ टू एंश्योर दैट इंडियन चिल्ड्रन एनकाउंटर द नैरेटिव्स ऑफ देयर ओन लैंड बिफोर इंटरनलाइजिंग द मिथ्स ऑफ अनदर। ठीक है, भारत के लोग अपने जो नैरेटिव्स अपने देश का है उसको समझ पाएं, एनकाउंटर कर पाएं, और दूसरे सभ्यताओं की, दूसरे देशों की जो मिथ्स है उस पे ना विचार करें। दिस एंडेवर, ये जो एफर्ट है, मस्ट ट्रांसेंड लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज। तो मराठी स्पीकिंग हो, नेपाली स्पीकिंग हो, आसमी स्पीकिंग हो, हिंदी स्पीकिंग हो, ये जो हमारा उद्देश्य है, एफर्ट है, राइट, वो लैंग्वेज बाउंड्रीज के बियॉन्ड होना चाहिए, एंड बी परस्यूड इन ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश इंक्लूडेड। इंग्लिश इज नो लॉन्गर फॉरेन, ऑथर के हिसाब से ये इंडिजनाइज हो चुकी है। एक्सेंट इंडियन अलग है, इंडिया के इंग्लिश ईडियम्स अलग हैं, इंग्लिश इमेजिनेशंस अलग हैं। इट इज़ द लैंग्वेज थ्रू विच इंडिया मोन्स, दुख मनाता है, डिबेट करता है, क्रिएट करता है, या ड्रीम करता है। चैलेंज इज नॉट टू अबैंडन इट। चैलेंज ये नहीं है कि हमें क्या इंग्लिश छोड़ देनी चाहिए, बट टू वील्ड इट जुडिशियसली। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वील्ड? वील्ड तलवार जब चलाते हो तो उसको वील्डिंग स्वॉर्ड कहते हैं। यूज जुडिशियसली मतलब सही तरीके से यूज करना है। विदाउट अलाउिंग इट टू एस्ट्रेंज, यानी दूर करना, विदाउट अलाउिंग इट टू एस्ट्रेंज अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। हमें हमारी जड़ें, ऐसा ना हो कि इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में हम हमारी जड़ें भूल जाएं। ठीक है, फॉर द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स नॉट इन एनी सिंगुलर टंग, क्योंकि इंडिया की जो जान है किसी एक भाषा में नहीं बसती, बट इन द स्टोरीज इट चूजेस टू रिमेंबर एंड द ट्रूथ्स इट डेयर्स टू टीच। नाउ author has left a very beautiful message that you should not forget the roots। अपने ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स को ऐसे डिसरिगार्ड मत करिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंग्लिश को कंप्लीटली नज़रअंदाज कर दें। नाउ दिस वाज द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर passage, and you just try to go through this particular paragraph and this particular explanation, try to solve the questions, and just tell me personally, out of these 4 questions, how many were correct, how many you got incorrect. Read the passage again after the explanation, and then possibly we'll discuss the second passage in the second part of this particular session.